Hello guys, welcome to Crystal Clear, and today we are going to start a new series DSN coding. Now DSN coding के अलग अलग तीन अलग series आने वाले हैं because they are going to be focusing on different things. So very firstly we'll be seeing DSN coding for placements and internships. So these will primarily focus on all the OAs and interviews, उनमें किस प्रकार के questions आते हैं, what are the topics generally asked, and we'll be sharing all the experiences with and tips regarding the interviews and OAs, and also some real questions which have been already asked. Next series will be DSA and coding advanced concepts. These will be helpful for a competitive programming and other things, wherein these in the placements and internship series will be covering the basic stuffs. ये वाली सीरीज में हम कुछ एडवांस टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. नाउ दीज आर नॉट एज सच रिक्वायर्ड. आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस. अगर और एडवांस में आपको जाना है, इधर CP करनी और समथिंग लाइक दैट, सो यू नीड टू हैव दिस एडवांस कॉन्सेप्ट सीरीज. नेक्स्ट इज DSA कोडिंग फॉर डिज़ाइन एंड एनालिसिस. इसमें विल बी फोकसिंग ऑन थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ DSA लाइक हाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़, ये कैसे कैलकुलेट करी जाती हैं, कैसे चीज़ों को डिराइव किया जाता है, द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम्स बिहाइंड इट. Fine, so the first series is PIP series, which is Placement and Internships Preparation series, ACD Advanced Coding series, and DA, which is Design and Analysis series. What we'll be covering? In the PIP series, we'll be covering, in the PIP series, हम zero से start करेंगे and we'll try to make it to all the advanced levels. So एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक C++ फॉर कोडिंग करते समय कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो C++ में काम आती हैं. Then we'll be starting with algorithms like searching and sorting. उसके बाद हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी देखेंगे C++ की, जिसमें वेक्टर, स्टैक्स, क्यूज, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं. आफ्टर दैट विल बी मूविंग टू ग्रीडी एंड DP. दो अप्रोचेस होते हैं. सो ग्रीडी के अप्रोचेस, DP, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन देम. ग्राफ्स एंड ट्रीज को हम बहुत ही डेप्थ में पढ़ने वाले हैं बिकॉज दीज DP, graphs, trees, these are important things which are generally very much asked in placements and interviews also. Linked lists, binary trees, ये सारी चीज़ें भी you need to know because linked lists are very common questions which are asked, right? So ये सारी चीज़ें, and there are many more to it, we'll be covering in PIP series. In the advanced concept series, we'll be covering some of the advanced topics. PIP series and ACD, both these series are going to go hand by hand, right? So advanced TP के कुछ concepts like state optimization, bitmask TP, subsets, range queries. जब हम DP में we go ahead and used all the sec trees and also those concepts, range queries, segment trees. उसमें भी कुछ advanced topics like lazy propagation, persistent trees, dynamic trees. जब हम segment trees को जैसे जैसे question ahead बढ़ते जाता है, build करते जाते हैं. So those are dynamic trees. Then 2D segment trees. All these things. Graphs and trees में भी some important concepts like heavy light decomposition, tree queries in big O of n. ये बहुत ही important topics है, generally पूछा जाता है. Flows and cuts, all these things we are going to cover. Number theory, probability, Markov chains, strings, hashing, tries, KMP algorithm, Z algorithm, all those and many more things are going to cover. So इसमें सारे advanced concepts will be covering. In the design and analysis series, our main focus would be on the theoretical aspect. कैसे हम data structures को बनाते हैं, कैसे उनकी time complexities निकाली जाती हैं, कैसे उनकी constraints निकाला जाता है, all those things. So this will be a theoretical point of view. Fine. So today we'll be starting with the PIP series. Okay, so let's start with our PIP series placements and internships preparations. इसमें वेरी फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इज C++ लैंग्वेज बिकॉज हम जो कोडिंग करने वाले हैं वो C++ में करने वाले हैं. सो सी व्हाट वी आर अज्यूमिंग हियर इज आपने कोई C++ या प्रोग्रामिंग का बेसिक कोर्स कर रखा है. सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर फेमिलियर विद C++ के वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इंटीजर्स, लॉन्ग्स, वो सारे क्या होते हैं. व्हाट आर C++ फंक्शंस कैसे काम करते हैं, कॉल स्टैक एंड लूप्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, व्हाइल लूप्स, फॉर लूप्स, ये सारी चीज़ें, दीज आर द बेसिक स्टफ्स व्हिच आई एम अज्यूमिंग कि ये सारी चीज़ें आप कर रखे हो. इफ नॉट, अगर आपको वो उसकी भी चीज़ चाहिए तो टेल अस इन द कमेंट्स. फाइन. सो हियर वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रैप्स एंड कैवियार्ड्स इन द C++, जो कि कोडिंग करते समय, कोडिंग क्वेश्चंस करते समय
हमें ध्यान रखने चाहिए, एंड जनरली ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक टेम्पलेट ऑफ C++। सो ये बेसिक टेम्पलेट सबको पता ही है कि तो दिस इज वी राइट सबसे पहले हैश इंक्लूड bit/std c++.h. What is these? These are called preprocessor directives. So basically hash include क्या करता है? bit/std c++.h is our library. So इस लाइब्रेरी को जस्ट जहाँ भी ये स्टोर है वहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर देता है। सो हैश इंक्लूड का मेन काम क्या है? इट्स मेन वर्क इज टू कॉपी पेस्ट द कोड। सो हम पूरा जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो भी कोड्स हैं उन्हें उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से हमें क्या चीज़ मिलती है? इट गिव्स अस मेनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल ये जो सी आउट फंक्शन आप यहाँ देख रहे हो, दिस इज नॉट अ फंक्शन एक्चुअली, दिस इज एन ऑपरेटर। दिस सी आउट ऑपरेटर इज इन दी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर इसकी डेफिनेशंस हैं, उसके अंदर हमें उसके ओ स्ट्रीम क्लास के अंदर हमें सी आउट मिलता है। सो ऐसे ही वेक्टर, अरे क्लास, वेक्टर, स्ट्रिंग्स, ये सारी चीज़ें हमें सी हैश इंक्लूड करके std c++ के अंदर ये सब में मिल जाती हैं। Then we write the next statement which is using namespace std. So inside this standard library we work in the std namespace. So it is kind of like our global namespace. So std namespace के अंदर ही ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। So अगर हम ऊपर ही using namespace std लिख दें, it means ऑल जो भी चीज़ें हम अंदर यहाँ यूज़ करने वाले हैं उनका नेम स्पेस डायरेक्टली std ही होगा। सो बेसिकली इफ़ यूल सी, अगर मैं यूजिंग नेम स्पेस std का यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ, सो आई शुड हैव रिटन std cout, बिकॉज ये जो cout का ऑपरेटर है दिस लाइज इन दी std नेम स्पेस एंड दिस कोलन इज माई नेम स्पेस रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और यू कुड से मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट। सो इसको मुझे बार बार लिखना ना पड़े std कोलन्स, दैट्स वाई ऊपर ही हम डिफाइन कर देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। दिस इज अ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन विच इज कॉल्ड जब आपका प्रोग्राम रन करना चालू करता है। सो ऑल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हियर विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। अंदर में यू कैन सी देयर इज सी आउट हेलो एंडल। एंडल क्या करता है? एक न्यू लाइन प्रिंट कर देता है एंड देयर इज रिटर्न 0। सो दिस इज अ बेसिक टेम्पलेट विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। सी फास्टर IO करने के लिए, सो अगर हम जनरली देखते हैं कि जब इनपुट आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है, सो इनपुट आउटपुट को फास्ट करने के लिए व्हाट डू वी डू? वी ऐड दीज टू लाइन्स इनसाइड अ मेन फंक्शन। सो इसे हम मेन फंक्शन के टॉप में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, विच इज iOS सिंक्रोनाइज विद स्टूडियो 0, यानी दिस इज फॉल्स। सो हम इसे ऑफ कर रहे हैं, scene.i को भी हम ऑफ कर देंगे। सो दिस इज द बेसिक टेम्पलेट फॉर आवर C++। वन इंपॉर्टेंट थिंग, बैकस्लैश n वर्क्स बेटर देन एंटल। वाई दिस हैपन्स? सो बेसिकली अगर यहाँ मैंने लिखा है सी आउट हेलो, इंस्टेड ऑफ दिस अ बेटर वर्जन टू राइट इट। नाउ व्हाई इज दैट? बिकॉज एंडल क्या करता है? एंडल फ्लशेस एवरीथिंग। सो इट फ्लश, एक चीज जब आप आउटपुट करते जाओगे तो वो फाइल में डायरेक्ट फ्लश करते जाता है। बैकस्लैश n डज नॉट फ्लशेस एवरीथिंग वेरी क्विकली। सो ये क्या करता है? एक बफर क्रिएट करता है और उसमें चीज़ों को फ्लश करता है, देन एट दी एंड वो सारी चीज़ें फिर हमारी आउटपुट के फाइल में जाती हैं। सो बैकस्लैश n इज मच फास्टर देन एंडल। What you can do is you can hash define this \n as endl in the top as well. We'll be looking with numbers, right? So हम हमेशा नंबर्स को यूज़ करके हम नंबर्स के साथ खेलेंगे। सो यू नीड टू हैव अ गुड ग्रास्प ऑन नंबर्स। नंबर्स के डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड उनकी रेंजेस क्या होती हैं, अगर आपको ये पता हो तो आपको डेटा टाइप चूज़ करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। सो फॉर एग्जाम्पल डेटा टाइप इज इंटीजर, राइट। सो इंटीजर डेटा टाइप की रेंज क्या होती है? -2^31 to 2^31 -1। नाउ हाउ बिग इज दिस? दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू -2 × 10⁹ to 2 × 10⁹. So see, if you notice, what is 2^10? 2^10 is 1024. So we can assume 2^10 to be 10⁻3. सो ये वाले जो कन्वर्जन है, दिस रिमेंबर दिस कन्वर्जन टेबल, ये अगर आपको याद रहेगा सो इट वुड बी हेल्पफुल, राइट। सो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ, सो 2^20 इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻6, 2^30 इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻9। सो बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 2^30।
एंड टू द पावर इसके स्क्वायर कर दो तो टू द पावर 60 वुड बी 10 पावर 18. Why am I telling these things? Because int is 32 bit size, right? int की साइज क्या होती है 32 bits. Similarly long की साइज क्या होती है 64 bits. And 2 to the power 30 is approximately 10 to the power 9. So इससे आपको याद रहेगा कि इंटीजर में अगर आप कोई वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है सो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 पावर 9 के आसपास ही होनी चाहिए. अगर 10 पावर 10 की वैल्यू आप एक इंटीजर में स्टोर करना चाह रहे हो सो व्हाट विल हैपन, दिस विल गो ऑन विथ ओवरफ्लो हो जाएगा. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवरफ्लो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये कन्वर्जन टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा. तो इंटीजर इज ऑलमोस्ट 10 to the power 9 in size. Similarly, long is almost 10 to the power 18 in size. So, for example, 10 power 19 का अगर कोई वैल्यू है उसे आप long में अगर रखना चाह रहे हो so that will go overflow हो जाएगा. So long 64 बिट्स का होता है एंड उसकी लिमिट होती है माइनस टू द पावर 63 टू टू द पावर 63 माइनस 1. एंड इस कन्वर्जन टेबल से अगर आपको अगेन टू द पावर 30 इज 10 पावर 9 दोनों साइड स्क्वायर कर दो. सो इसको स्क्वायर कर दूंगा तो टू द पावर 60 आ जाएगा. राइट साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो आई विल गेट 10 पावर 18. सो लॉन्ग इंटीजर इज ऑलमोस्ट 10 to the power 18 इन साइज, राइट. बट अगर आपको उससे भी बड़ा चाहिए सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक लॉन्ग टू बी अनसाइंड लॉन्ग. और अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइम ये नेगेटिव पोर्शन हट जाएगा और वो पॉजिटिव में ही चले जाएगा. तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 पावर 19. सो अगर आपको सो व्हाट इज द रूल ऑफ थंब सेज दैट अगर लेस देन 10 to power 9 की आपको वैल्यू स्टोर करनी है सो यू कैन टेक योर वेरिएबल टू बी ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. अगर लेस देन 10 to power 18 आपको स्टोर करना है सो यू कैन टेक योर वेरिएबल टू बी अ लॉन्ग डेटा टाइप. बट अगर आपको 10 to power 19 के आसपास की वैल्यूज स्टोर करनी है सो लॉन्ग भी आपको कभी धोखा दे सकता है. सो व्हाट शुड यू यूज, यू शुड यूज अनसाइंड लॉन्ग. फाइन. सो दीज कन्वर्जन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसे दिमाग में रखोगे तो आगे भी चीज़ें काम आने वाली हैं. देन नंबर्स आर इंटीजर्स बाय डिफॉल्ट. सो बेसिकली अगर मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स से लॉन्ग a इक्वल्स टू 1 लिखा, मैंने अगर हमारे C++ कोड में लिखा लॉन्ग a इक्वल्स टू 1 एंड इफ़ आई अज्यूम कि ये जो 1 है वो एक लॉन्ग की तरह काम करे सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. लॉन्ग उसे बनाने के लिए आई नीड टू ऐड सफिक्स ll. सो 1 नंबर्स के पीछे हम ll सफिक्स ऐड करते हैं टू मेक इट अ लॉन्ग इंटीजर. सिमिलरली उसके पीछे अगर ull ऐड कर दिया गया सो दैट बिकम्स अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल what does this 1 mean when it is an integer? So it's a 32-bit integer, right? So it would look something like this. So these are my 32 bits, right? So this is 1. But when I write 1 ll, it means that there are 60. So total number of bits is 64. So there are 63 zeros and a 1. So this is 64 bits. This is 1 ll. So अगर आप सिंपली 1 लिखोगे तो उसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट 1 एज एन इंटीजर. सो 1 एज एन इंट डेटा टाइप की अगर आप बात कर रहे हो, अगर आपको 64 बिट्स का 1 चाहिए विच इज एक्चुअली यू शुड बी यूजिंग, सो आपको 1 ll लिखना पड़ेगा. फाइन. सो जस्ट रिमेंबर दीज फैक्ट्स. नेक्स्ट विल बी मूविंग अहेड विथ मॉड्यूलर अरिथमेटिक. मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या होता है? सो सी व्हेन वी से x मॉडुलो m, x मॉडुलो m का मतलब क्या होता है? m इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर. जब मैं x को m से डिवाइड करूंगा सो आई विल गेट सम रिमाइंडर. दैट रिमाइंडर इज व्हाट गिवन बाय माय x मॉडुलो m. फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव 17 मॉडुलो 5. 17 मॉडुलो 5 का मतलब क्या है? जब 17 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या आएगा 3 एंड रिमाइंडर क्या आएगा 2. So this 2 is given by modulus. So 17 modulo 5 is actually 2 because जब 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर वुड बी 2. सो मॉडुलो हमें रिमाइंडर निकाल के देता है. सो x मॉडुलो m gives the remainder when x is divided by m. अब मॉडुलस अरिथमेटिक में 3 वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ये आपको याद रखनी है. द फर्स्ट इक्वेशन सेज कि अगर a प्लस बी का मॉडुलस निकालना है m के साथ, a प्लस बी मॉडुलो m,
सो वो कैसे निकालेंगे? ये जो मॉड m है वो अंदर भी लगाया जा सकता है। सो दिस वुड बिकम a मॉडलो m प्लस b मॉडलो m, और होल का फिर आपको मॉडलो m लगाना पड़ेगा। जब माइनस करना होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, a माइनस बी मॉडलो m, सो व्हाट यू विल डू, a मॉडलो m माइनस b मॉडलो m, अब यहाँ पर एक प्लस मॉडलो m लगाना पड़ेगा। दिस इज प्लस मॉडलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद फिर सबका होल में भी आपको एक मॉडुलस लेना पड़ेगा। जब a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन में मॉडुलस लगाना है, सो यू डू गेट a मॉडुलो m मल्टीप्लाइड बाई b मॉडुलो m, और होल में भी आपको फिर मॉडुलस लेना पड़ेगा। यू माइट बी थिंकिंग व्हाट अबाउट a डिवाइड बाई b मॉडुलो m? सो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ a मॉडुलो, इजंट दिस इक्वल्स टू a मॉडुलो m डिवाइड बाई b मॉडुलो m होल का मॉडुलो m? And mind you, this is very important. डिवीजन में मॉडुलस डज नॉट वर्क दिस वे। डिवीजन का मॉडुलस कैसे वर्क करता है? इट इज एन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट जो हम नंबर थ्योरी में आगे पढ़ने वाले हैं। सो अभी डिवीजन के मॉडुलस को याद रखना है, इट डज नॉट वर्क द वे सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वर्क्स। फाइन, सो मॉडुलस के रिगार्डिंग रिमेंबर दिस थिंग। देन विल बी मूविंग अहेड विथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं? फ्लोट्स, जब हम फ्लोट्स डेटा टाइप यूज़ करते हैं, डबल डेटा टाइप यूज़ करते हैं, ऑल दीज थिंग्स ये हमें पॉइंट्स में आंसर देती हैं। फॉर एग्जांपल 2.33, इसको आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते, करेक्ट? इस पॉइंट को स्टोर करने के लिए यू नीड टू हैव अ फ्लोटिंग डेटा टाइप, फ्लोट या डबल, उसमें आपको ये नंबर को स्टोर करना पड़ेगा। देयर इज वन इंपॉर्टेंट कैवियट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द फ्लोट और द डबल डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल, let's say I have a float data type और float a is equals to 2 point करना है, मुझे a और b को कंपेयर करना है, are they equals or not? तो क्या मुझे ये equals equals ऑपरेटर यूज करना चाहिए? No, I should never use equals equals operator with float numbers, right? Why? It's risky to compare floating numbers with the equals equals operator because it's possible that the value should be equal but they are not because of precision errors. See, क्या होता है, there are precision errors in floating point numbers. So अगर आप पाई की वैल्यू निकालोगे, जैसे 22/7, इसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे, so you would get कि कहीं ना कहीं पॉइंट के बाद जाके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में प्रिसीजन एरर्स आना चालू हो जाते हैं। इसलिए अगर आप इक्वल्स इक्वल्स डेटा टाइप यूज करोगे, सो इवन इफ 22/7 इक्वल्स टू 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, equals equals won't give you the exact answer. So take this as a golden rule कि जब भी आपको दो फ्लोटिंग नंबर्स a और b दोनों को कंपेयर करना है, बोथ आर फ्लोटिंग नंबर्स, दोनों पॉइंट डेसिमल नंबर्स हैं, उनको कंपेयर करने के लिए यू विल ऑलवेज डू इट लाइक दिस। इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी मीन्स मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी, अगर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा, 1 माइनस, सो इट्स लाइक 10⁻⁹, अगर उनके बीच का डिफरेंस बहुत छोटा है, द एप्सिलॉन छोटा है, देन यू कैन से दैट a एंड b आर इक्वल, अदरवाइज यू से दैट a एंड b आर नॉट इक्वल। सो जब भी दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को कंपेयर करना है, यू वुड नेवर यूज a इक्वल्स इक्वल्स b, नेवर यूज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। Always use absolute a minus b less than 10⁻⁹ or any small, very small value, epsilon. Fine. So this was a caveat, a trap जो कि floating point numbers को compare करते समय you should be careful of. Next we'll be talking something about macros and type names. So see, जब भी आप code करोगे, so you can make your code much easier for you to understand and write when you'll be using type names and macros. Type names क्या होते हैं? जब बड़े बड़े डेटा टाइप्स होते हैं उनको बार बार लिखने से बचने के लिए वी कैन शॉर्टन देम, इट्स लाइक शॉर्ट कोड्स, राइटिंग शॉर्ट कोड्स। सो वी यूज टाइप नेम्स, फॉर एग्जांपल टाइप डिफाइन लॉन्ग लॉन्ग ll. So basically what am I doing? This is my type define. So this is the term which you should be writing in front, type define. So you are defining a new kind of like alias to a data type. Then long is the type, data type which you are trying to give a short code to. So हम long को एक short code देना चाह रहे हैं और वो short code क्या है? ll. So basically आगे जब भी let's say अगर हमें लिखना हो long a is equals to this, long b is equals to this, cout a into b,
ये सब बार बार लॉन्ग लिखने से अच्छा व्हाट यू कैन राइट LLA equals to the same, LLB is equals to this, and you can directly write C out A into B. So बार बार हमें लॉन्ग लिखने के बदले you can now directly write LL. So किसी भी टाइप को अगर आपको डिफाइन करना है, so you have to write type define, then your data type, and then the name which you want to give it to. So this is the syntax which you must be using. Type define, then the data type जिसको आप define करना चाहते हो, and then the name. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वेक्टर ऑफ इंट को डिफाइन करना है, सो व्हाट यू कैन राइट टाइप डिफाइन वेक्टर ऑफ इंट, सो वेक्टर अंडर ब्रैकेट्स इंटीजर एंड vi. सो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज बेसिकली क्लास विच इज प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ C++. आगे हम STL लाइब्रेरी जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम देखेंगे. सिमिलरली अगर आपको पेयर को टाइप डिफाइन करना है, सो यू कैन राइट टाइप डिफाइन पेयर ऑफ इंट SPI. सो आगे जब भी कोड में आप PI लिखोगे तो दिस PI will get transformed to pair of int by itself, right? So it shortens your code और आपको कोड लिखने में बहुत आसानी होगी. These were type names and type defines. एक होता है macro. Macro does very similar kind of thing, but type defines are for data types. Macros are for anything. कोई भी आप रैंडम नाम को एक छोटा नाम दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर आपको बार बार फर्स्ट लिखने में भी दिक्कत आ रही है, सो यू कैन डिफाइन इट टू बी F. तो जब भी आप कैपिटल F लिखोगे ना आपके कोड में, दैट कैपिटल F विल ऑटोमेटिकली गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड टू फर्स्ट. सो हैश डिफाइन करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, हैश डिफाइन, फिर द नेम विच यू वांट टू गिव एंड द वर्ड जिसको आप डिफाइन करना चाहते हो. तो दिस इज अ सिंटैक्स फॉर हैश डिफाइनिंग. तो कोई भी रैंडम वर्ड को आप कोई भी नेम दे सकते हो वाया हैश डिफाइनिंग. अगर आपको बार बार पुश बैक लिखने में दिक्कत आ रही है, बहुत लंबा वर्ड है पुश बैक, सो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, हैश डिफाइन इट टू बी PB. तो इसको एक छोटा सा नाम दे दो PB. मेक पेयर लिखने में बार बार दिक्कत आ रही है, तो यू कैन हैश डिफाइन इट टू बी MP. सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. इसमें क्या है, वी डॉट पुश बैक मेक पेयर y1 y2. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर है, वेक्टर ऑफ पेयर है. सो बेसिकली मेरे पास एक वेक्टर है जिसका हर एक एलिमेंट क्या है, इट्स अ पेयर. सो मैं क्या कर रहा हूँ, उस वेक्टर में पुश कर रहा हूँ. आई एम पुशिंग एन एलिमेंट इनटू दैट वेक्टर, दैट इज अ पेयर. सो आई नीड टू फर्स्टली मेक दैट पेयर. मेक पेयर करने के लिए दिस इज अ फंक्शन विच यू नीड टू कॉल, मेक पेयर y1 y2. तो ये y1 y2 का एक पेयर बना के उसको वेक्टर v में पुश कर देगा. सिमिलरली v डॉट पुश बैक मेक पेयर y2 x2. तो ये y2 x2 दोनों को साथ में मिलाएगा, उसका एक पेयर बना देगा और उसको v में पुश कर देगा. एंड देन इंट d इज समथिंग समथिंग, राइट. अब ये कोड को आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से शॉर्टन कर सकते हो. सो पुश बैक की जगह मैं सिंपली PB लिख सकता हूँ, बिकॉज PB इज हैश डिफाइंड टू पुश बैक. मैं मेक पेयर की जगह MP लिख सकता हूँ, बिकॉज MP इज हैश डिफाइंड टू मेक पेयर. तो अगर मैंने कोड के ऊपर मैंने ये लिख दिया अपना, सो आई कैन राइट दिस कोड इंस्टेड ऑफ दिस लॉन्ग कोड. सो माई कोड शॉर्टन्स और लिखने में भी आसानी हो जाती है, पढ़ने में भी आसानी हो जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल vi डॉट फर्स्ट, अगर मुझे v का ith एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट को चूज करना है, सो मुझे बार बार डॉट फर्स्ट लिखना पड़ेगा. उसके बदले अगर मैंने हैश डिफाइन फर्स्ट कर रखा है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट vi डॉट f प्लस vi डॉट s. सिमिलरली लूप्स को भी आप हैश डिफाइन करके रख सकते हो. तो हैश डिफाइन rep IAB. सो यहाँ थोड़ा बात को समझना. व्हेन आई राइट REP IAB, so it means these are taken like parameters. तो जब भी मैं फॉर एग्जाम्पल लिखूंगा REP 1 2 3, सो इट्स लाइक जहाँ जहाँ आगे आने वाले जहाँ भी, दिस इज माई वर्ड विच आई नीड टू हैश डिफाइन, राइट. तो इसमें जहाँ जहाँ भी I आया है दैट विल बी रिप्लेस्ड विथ 1, जहाँ जहाँ भी A आएगा दैट विल बी रिप्लेस्ड विथ 2, और जहाँ जहाँ भी B आएगा दैट विल बी रिप्लेस्ड विथ 3. सो फॉर इंट I इक्वल्स टू A, I लेस इक्वल्स B, I प्लस प्लस, दिस अगर मैं rep 1 2 3 लिखता हूँ, सो दिस विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड टू फॉर इंट. अब I की जगह क्या है,
i is my variable. So see, i की जगह अगर मैं i देता हूँ तो it will remain i. So for int i equals to a की जगह it would be 2, i less equals b. What is b? b की जगह 3 आ जाएगा, and then i plus plus. So it is kind of like आप macros के अंदर variables भी use कर सकते हो. So rep i a b, अगर i की जगह आप यहाँ j डाल दो तो जहाँ जहाँ i है वो j से रिप्लेस हो जाएगा. All these will be replaced with j. आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं rep i1n. So this actually gets transformed to the loop, and I have shortened my code using hash defines. Now there is a caveat. Let's say अगर आपने हैश, आपको अगर किसी नंबर के स्क्वायर का भी एक हैश डिफाइन बनाना है तो बार बार आपको दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, आलस आ रहा है, तो आपने उसका एक हैश डिफाइन बना लिया. सो हैश डिफाइन एस क्यू ऑफ ए, दैट इज हैश डिफाइन टू ए इंटू ए. तो जब भी आप एस क्यू ऑफ एक्स लिखोगे वो अपने आप एक्स इंटू एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. बट इसमें एक दिक्कत है. इसमें क्या दिक्कत है? लेट्स से आपको स्क्वायर निकालना है एस क्यू ऑफ लेट्स से 9, बट 9 को आपने 5 प्लस 4 लिख दिया. सो आइडियली आप क्या चाहते हो? 9 का स्क्वायर निकालना. तो आप क्या चाहोगे? दिस शुड रिजल्ट आउट टू बी 81 9 इंटू 9. बट एक्चुअली में एस क्यू ऑफ ए आपने ये चीज़ लिखी, ए की जगह ए विल गेट रिप्लेस्ड विथ 5 प्लस 4 एज इट इज. सो ए को क्या मिला? ए को 5 प्लस 4 एज एन इनपुट मिला. तो जहाँ जहाँ भी यहाँ पर जहाँ जहाँ भी a है वहाँ डायरेक्ट 5 प्लस 4 एज इट इज़ जाके कॉपी पेस्ट हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 5 प्लस 4, यहाँ भी a है, मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4. एंड आप देख चुके हो कि दिक्कत क्या आने वाली है. पहले ये इवेल्युएट होगा एंड 5 20 एंड 9, आंसर 29 आ जाएगा. तो दिस इज रॉन्ग, राइट? आई नीड टू बी इन बेटर वे एज ब्रैकेट आप खुद लगा दो आप. तो ए जो भी इनपुट में है, ए में ब्रैकेट है ब्रैकेट नहीं है डज नॉट मैटर, ब्रैकेट लग के वो मल्टीप्लाई होगा. लास्टली वी आर गोना टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस. अगर एक फॉर लूप लगा है सो इट इज़ बिग ऑफ एन. फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा दिया तो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है. एन क्यूब कैसे होता है, 2 टू द पावर एन बिग ओ कैसे होता है. सो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रखे हैं. कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस. सो अगर कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी क्लास लाइक बिग ऑफ 1, सो कोई भी आप ऑपरेशन अगर सिंगल ऑपरेशन है लेट्स से तो वो बिग ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम में हो रहा है. बिग ऑफ लॉग एन, सो पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आप बोलोगे तो दिस शुड बिलोंग्स टू दिस. समझने के लिए यू कैन अंडरस्टैंड इट टू बी लेस देन और इक्वल्स टू. सो बिग ऑफ 1 इज लेस देन बिग ऑफ लॉग एन, दिस इज लेस इक्वल्स बिग ऑफ रूट एन, दिस इज लेस देन लॉग एन एन, देन एन लॉग एन स्क्वायर, एन क्यूब, 2 टू पावर एन फैक्टोरियल. अब जब हम हमारे इनपुट की साइज गिवन रहेगी, सो हमें n की वैल्यू गिवन है, सो कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी क्लास हमारे लिए फीजिबल है वो कैसे पता करेंगे? तो दिस इज आवर इनपुट चार्ट. सो अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी है, लेट्स से 10 पावर 9, 10 पावर 18, 10 पावर 19, ये सारी n की वैल्यूज़ के लिए हम बिग ऑफ n भी नहीं यूज़ कर सकते. वी कैन ओनली यूज़ बिग ऑफ 1, बिग ऑफ लॉग n. सो n की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है तो सिर्फ कांस्टेंट टाइम में या फिर लॉग एन टाइम में ही आपको आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से n की वैल्यू आपको 10 पावर 18 गिवन है. नाउ व्हाट डू वी नो? 1 सेकेंड में आपका पीसी ऑलमोस्ट 10 पावर 8 ऑपरेशंस कर सकता है. दिस इज काइंड ऑफ अ फैक्ट. सो इस फैक्ट को आपको याद रख लेना है. सो अगर 10 पावर 18 का आपको n इनपुट गिवन है, तो अगर आप O ऑफ 10 पावर 18 नंबर ऑफ ऑपरेशंस करोगे, सो ऑब्वियसली 1 सेकंड के अंदर आपका टेस्ट केस पास नहीं हो पाएगा, बिकॉज 1 सेकंड में तो आप सिर्फ 10 पावर 8 ऑपरेशंस ही कर पाओगे. सो 10 पावर 18 ऑपरेशंस करने के लिए तो आपके पास समय ही नहीं है. सो n की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है तो आपको बिग ऑफ 1 में या बिग ऑफ लॉग ऑफ 10 पावर 18 में आपको आपका क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. n की वैल्यू अगर 10 पावर 6 के अराउंड है तो यू कैन यूज़ n log n, या फिर n तो चलेगा ही, n log n भी चल जाएगा. n की वैल्यू अगर 5000 से कम है तो n स्क्वायर भी चल जाएगा, बिकॉज 5000 का स्क्वायर करोगे तो इट वुड बी 25 इंटू 10 टू पावर 6 विच इज़ लेस देन 10 टू पावर 8. सो ये आपका चल जाएगा. n की वैल्यू 500 है, सो आपका n क्यूब भी चल जाएगा, बिकॉज 500 का क्यूब करोगे तो इट वुड बी 125 इंटू 10 टू द पावर 6
विच इज़ 1.25 इंटू 10⁸ विच इज़ काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10⁸ ही है. सो n की वैल्यू अगर 500 से कम है सो n³ भी चल जाएगा. टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, n की वैल्यू अगर 10 से कम है तभी आपका n फैक्टोरियल चल पाएगा. n की वैल्यू 20 से कम है तभी आपका बिग O ऑफ 2n चल पाएगा. सो अगर आपको कोई क्वेश्चन को 2n की कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है तो उसके लिए n की वैल्यू को 20 से छोटा ही होना पड़ेगा. n की वैल्यू लेट्स से 50 है और आप बोलोगे कि 250 तक अगर मैं चला रहा हूँ तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, टेस्ट केस पास नहीं होने वाला है. अगर आपको बिग O ऑफ n फैक्टोरियल में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए n की वैल्यू को 10 से छोटा होना ही पड़ेगा, बिकॉज आगे जाते समय फैक्टोरियल्स की वैल्यू बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ते जाती है. विद दिस वी आर डन विथ ऑल द बेसिक्स. C++ में कौन से ट्रैप्स एंड ट्रिक्स ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं वो वी आर डन. नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद सम ऑफ द एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स.